Good morning, dear children. Today we will read the third chapter of Vistas, CBSE English book, class 12. The chapter is Journey to the End of the Earth, and its author is Tishani Doshi. So, in Journey to the End of the Earth, Tishani Doshi describes the journey to the coldest, driest, and windiest continent in the world, and that is Antarctica. The world's geological history is trapped here. Geoff Green's Students on Ice program aims at taking high school students to the end of the world. Tishani Doshi thinks that Antarctica is the place to visit if anyone want to understand the Earth's present, past, and future. So let's read and understand it. Before you read, she says that if you want to know more about the planet's past, present, and future, the Antarctica is the place to go to. Bon voyage. She says that if you want to know about a place, you want to know about the Earth's past, present, and future, so you must visit Antarctica. It will be a good experience for everyone who wants to understand the place. So let's start the chapter here. She says that early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Academic Shkolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. So here, Tishani Doshi tells us that early this year, कि वो अभी इसी साल में उसने क्या किया कि एक रशियन रिसर्च वेसल, एक रशियन शिप में वो बैठी थी, द अकेडमिक शकोल्स्की, जिसका नाम है अकेडमिक शकोल्स्की. अकेडमिक शकोल्स्की है, शिप का नाम है. हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका. और वो जहाज किस ओर बढ़ रहा है? एंटार्क्टिका की ओर. एंटार्क्टिका जो कि दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और तेज हवाओं वाला कॉन्टिनेंट है. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज. टिशानी दोशी ने जो अपनी यात्रा की शुरुआत की थी वो 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मेड्रास. इक्वेटर क्या होता है? अ लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो वहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स. और उसने 9 टाइम जोन पार की, क्रॉस किए. हर कंट्री के अपने टाइम जोन होता है. 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर उसने पार किए. 3 bodies of water means seas. She crossed 3 seas and at least as many ecospheres. And what is the meaning of ecospheres? Ecosphere means the biosphere of the earth when the interaction between living and non-living components is emphasized. So, यहाँ पर वो हमें बताती हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है शिप में वो अपने आप को वो देखती हैं, वहां बैठी थी और वो जो शिप था वो अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था. एंटार्क्टिका जो कि दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप माना जाता है. नेक्स्ट शी सेज दैट by the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. तो यहाँ पर टिशानी दोशी हमें बताती है कि by the time I actually set foot on the Antarctic continent, जिस समय उन्होंने एंटार्क्टिका में अपना कदम रखा, तब वो वहां पर किसी भी कार, एरोप्लेन या शिप से कहीं ज्यादा तेज स्पीड से वहां पर वो ट्रेवल कर रही थी. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप. तो जब उन्होंने एंटार्क्टिका के लैंडस्केप को देखा, एक्सपेंसिव मीन्स कवरिंग अ वाइड एरिया, वाइड रेंजिंग एरिया, जब उन्होंने उसको देखा, my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape
and uninterrupted blue horizon was relief. और जब उन्होंने blue horizon देखा, horizon क्या होता है? A line at which the earth's surface and the sky appear to meet. तो वहां पर उनको काफी रिलीफ मिला, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके साथ ही उनको बहुत ज्यादा वहां पर हैरानी भी हुई, बहुत ही अद्भुत था। एंटार्क्टिका अपने आप में एक अद्भुत जगह है, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। तो वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, पर्सनली जब वहां पर जाते हैं, तो इट इज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो टिशानी दोशी मस्ट हैड दैट वंडरफुल एक्सपीरियंस शी इज डिस्क्राइबिंग हियर। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इतना अद्भुत सीन था। इमेंसिटी मीन्स द लार्ज साइज। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स वो एरिया जो है बहुत ही आइसोलेटेड है, वहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, और वहां पर कोई स्थायी निवासी तो है नहीं है, कोई रहने वाले नहीं है, लेकिन हाँ, साल में 2000 से 5000 लोग वहां पर विजिट करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग रिसर्च करने जाते हैं, कुछ लोग वहां के फैक्ट्स को देखने जाते हैं, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were parts of the same landmass. तो यहाँ पर वो ये बताती हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जब इंडिया और एंटार्क्टिका जो है वो एक ही थे, वो अलग अलग नहीं थे, वो एक ही धरती का, एक ही पृथ्वी का वो एक ही हिस्सा थे। Next, she says that now we read part of history. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica, present day Antarctica. So she says that 650 million years ago, 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent. वहां पर एक काफी बड़ा southern supercontinent था जिसका नाम था गोंडवाना। Did indeed exist, और वो सच में वहां पर था। Centered roughly around the present day Antarctica, जो कि आज वहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, कहीं वहां पर बीच में ही था वो गोंडवाना। एंड थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। तो वो बताती हैं कि उस समय जो चीजें हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और दुनिया में तब इंसान जो है वो अभी हुए नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और वहां का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये जो अंटार्कटिका है, ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहां पर कोई स्थायी निवासी भी नहीं होता है, और हर साल जहां 2000 से 5000 लोग विजिट करते हैं। हालांकि इंडिया ने यहाँ पर अंटार्कटिका में 3 रिसर्च सेंटर भी खोले हुए हैं, जिसमें से 2 एक्टिव हैं। और ये भी सुनने में आता है, दिस इज द ऑल्सो वन ऑफ द रैंडम फैक्ट्स अबाउट अंटार्कटिका, कि जो अंटार्कटिका है वो यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना बड़ा है। और कम से कम यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि जैसे कि अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो एक समय था जब वो बहुत ही गर्म रीजन था, तो लगभग 53 लाख ईयर, 53 लाख साल पहले ये बहुत ही हॉट रीजन माना गया था, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और जहां पर अनगिनत वैरायटी की जो है फ्लोरा एंड फौना, मीन्स प्लांट्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर मिलता है। एंड देन आगे वो कहती हैं कि फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। 500 साल तक तो गोंडवाना जो है वहां पर फ्लोरिश करता रहा, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स were wiped out and the age of the mammals got underway. But around the time when the dinosaurs were wiped out, एक समय आया जब वहां से डायनासोर्स भी गायब हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और मैमल्स का जो है वो समय आ गया। द लैंड मैस वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। तो उस समय जो ये लैंड मैस था, ये धरती का जो टुकड़ा था, ये अलग अलग देशों में बट गया, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और जिससे दुनिया का जो ग्लोब है उसको एक नया आकार दिया इसने। तो आज हम जिसे देखते हैं, आज हम जिस दुनिया में देखते हैं, वो पहले ऐसी नहीं थी, वो पहले कुछ और था।
तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया के जो देश हैं वो अलग अलग हिस्सों में बटे होंगे तो कैसा रहा होगा। आगे देखते हैं। To visit Antarctica now is to be a part of that history. अब अंटार्कटिका में विजिट करना, वहां पर जाना, वहां की यात्रा करना, वो एक हमारे इतिहास का ही हिस्सा है। टू गेट अ ग्रैस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, ये जानना कि हम कहां से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और अब हम आगे किस ओर बढ़ रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स, और हमें ये भी समझना होगा कि क्वाड्रिलन फोल्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है। क्वाड्रिलन फोल्ड्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है वहां पर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। प्री कैम्ब्रियन क्या है? which denotes earliest aeon of the earth's history, जहां से हमें धरती के अंदर बहुत सारी परतें हैं और परतों के नीचे क्या छिपा है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, कि किस तरह से अंटार्कटिका के अंदर जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं उनके अंदर जो लेयर्स हैं उनके अंदर कितना कार्बन है और कितना इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। We all come to know about that. When you think about all that can happen in a million years, जब आप सोचते हैं कि इतना सब कुछ इतने मिलियन ईयर्स में यहाँ पर हुआ है, it can get pretty mind boggling. तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है। इमेजिन, आप कल्पना करें, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस, कि अगर इंडिया जो है वो नॉर्थ की ओर अपने आप को पुश कर रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया से टकराता हुआ, और हिमालय पर्वत का हिमालय को बनाता हुआ। कैसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक देश जो है वो एक एशिया को टकरा कर वो अपने एक जगह बना रहा है, एक स्थान बना रहा है, और उसी प्रोसेस के अंदर हिमालय बन रहे हैं। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका की ओर खिसक रहा है, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ को ज्वाइन करने के लिए। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड circumpolar current. Opening, and here she says that opening up the Drake Passage. Drake Passage क्या होता है? Body of water between South America and Antarctica. Opening up the Drake Passage, उस पैसेज को, उस समुद्र के उस रास्ते को खोल दिया, to create a cold circumpolar current, जहां पर circumpolar क्या है? Situated around or inhabiting one of the Earth's poles. Circumpolar means जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसके बीच का कोई जगह जो है, उसके बीच का स्थान। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और वहां पर उन्होंने उस तरह से, जिस तरह से वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की और अमेरिका जो है ज्वाइन करने वाले हैं, तो कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जिससे अंटार्कटिका जो है वो इतना कोल्ड, फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड, डेजोलेट मीन्स आइसोलेटेड, डेजर्ट टाइप, क्योंकि जो अंटार्कटिका है उसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहते हैं, बर्फ का रेगिस्तान भी कहते हैं, और इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और जो अंटार्कटिका है वो दुनिया के बिल्कुल अंतिम छोर पर है। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यहाँ पर टिशानी दोषी अपना जिक्र कर रही हैं। वो कहती हैं कि क्योंकि वो साउथ इंडियन है, तो कहती हैं कि अगर अगर मेरी तरह हो, जैसे कि साउथ इंडियन हो जो कि सूर्य की पूजा करते हैं, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. Circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. She says that for a sun worshipping South Indian, सूर्य की पूजा करने वाले साउथ इंडियन जो मैं हूं, 2 weeks in a place, अगर मैं 2 हफ्ते एक ऐसी जगह पर गुजारूं where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling, जहां पर जो जितनी भी बर्फ है उसका 90% जो है बहुत ही ठंडा
प्रोस्पेक्ट सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, बहुत वहाँ पर जो है 90% जो पानी बर्फ के रूप में मौजूद है अंटार्कटिका में, वो बताती हैं कि नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। वो सिर्फ मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए नहीं, बल्कि वो कल्पना करने के लिए भी कहती हैं कि आप कल्पना करें कि अगर आप एक ऐसी जगह पर जहाँ पर 90% पानी जो है बर्फ के रूप में वहाँ पर जमा हुआ है, वहाँ पर आप कैसा महसूस करेंगे? इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। इससे पहले हम देखेंगे, ये पिक्चर देखेंगे कि यहाँ पर आपको पेंगुइन्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर लोग तो नहीं रहते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ हैं और दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर तक आप मोटी चादर बर्फ की देख सकते हैं। और यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, और बहुत छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं यहाँ पर, फ्लोरा एंड फौना में, प्लांट्स, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। पेंगुइन्स देख सकते हैं, और भी बहुत तरह के प्राणी यहाँ पर होते हैं, बहुत तरह के जीव यहाँ पर मिलते हैं जो ठंडे इलाकों में रहने के आदी होते हैं। तो आगे देखते हैं। शी सेज दैट from here we will start. Yes, it's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers. वहां पर इंसान के कोई रहने के कोई निशान वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, ना ही वहां पर कोई पेड़ हैं, ना ही बिलबोर्ड्स हैं। बिलबोर्ड्स क्या होते हैं? बिग एडवर्टीजमेंट स्ट्रक्चर्स। ना ही कोई बिल्डिंग्स हैं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। और वो बताती हैं कि जब आप अंटार्कटिका में आ जाते हैं, तो वहां पर आप कोई भी आपको जो दुनिया के अंदर रहने का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जहां आप शहरों में रहते हैं, वहां का कोई भी ध्यान, आपको कोई ख्याल जहां पर नहीं आता, ना ही समय का कोई ध्यान रहता है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और जितनी भी दूर तक नजर जाती है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक। मिजीज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स। मिजीज एंड माइट्स क्या है? वेरी स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। और बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स, और बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े। as big as countries as big as countries means she wants to tell us that वहां पर you can't imagine कि कितने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ और टुकड़े वहां पर हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। सबसे जो लार्ज साइज चेक किया गया था वहां पर बर्फ के पहाड़ का, वो एक पूरे बेल्जियम के साइज का था, पूरे देश के साइज का। Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. वहां पर दिन बीतते जाते हैं। ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रल समर लाइट जो है, वहां पर वो बताते हैं कि ऑस्ट्रल जो, इसका मीनिंग क्या है कि रिलेटिंग टू द साउदर्न हेमिस्फीयर, जहां पर साउदर्न समर लाइट है। एंड यूबिक्विटस साइलेंस। यूबिक्विटस साइलेंस मीन्स वेरी स्ट्रेंज साइलेंस। वहां पर आप समझ सकते हैं कि जहां पर प्रकृति ने अपनी इतनी छटा बिखेरी है अंटार्कटिका में, वहां पर इतनी सुंदरता होने के बावजूद भी साइलेंस है, क्योंकि वहां पर कोई रश नहीं है, कोई लोग नहीं है, और वहां पर कोई शोर नहीं है। तो वहां पर बहुत ही स्ट्रेंज साइलेंस है, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल अवलांच और कार्विंग आइस शीट। अब वो जो शांति है, वहां पर जो चुप्पी है, वो कब भंग होती है? कभी कभार जब वहां पर अवलॉन्च हो जाता है। अवलॉन्च क्या होता है? द पीसेस ऑफ रॉक्स फॉलिंग फ्रॉम द माउंटेन रेंजेस। जब पहाड़ों से बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, और कई बार बहुत तूफानी बर्फ के टुकड़े वहां पर गिरते हैं, जब पहाड़ टूटते हैं तो वहां बहुत शोर होता है। कभी कभी वहां पर कार्विंग आइस शीट, जो बर्फ की नई परतें बनती हैं, तो भी वहां पर कुछ आवाजें होती हैं। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस। और ये सारी चीजें मिलकर अंटार्कटिका जैसे खूबसूरत स्थान को और भी ज्यादा, कॉन्सिक्रेट्स मीन्स दे डिक्लेयर इट वेरी सेक्रेट, वो इसे पवित्र बना देती हैं। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. She says that it's an immersion that will force you to place. ये वहां पर जाने के बाद जो है, कोई भी व्यक्ति वहां पर इमर्स हो जाता है। इट मेक्स यू इमर्स। जब आप वहां जाते हैं जानने के लिए अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी की
पृथ्वी के इतिहास के बारे में जब जानने जाते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है? ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। और इंसानों के लिए रहने की ये जगह नहीं है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? द जजमेंट ऑफ ए डॉक्टर और अबाउट द मेडिकल कंडीशन। तो मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए दिस प्लेस इज नॉट सुटेबल टू लिव देयर फॉर ह्यूमन बींग्स। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर देखते हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट। यहाँ पर टिशानी दोषी क्या बताती हैं हमें? ह्यूमन civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. So, in these lines, she tells that human civilizations have been around for a paltry 12,000 years. Paltry means very small. बहुत कम समय इसको मानती है वो कि 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले ही इंसान जो है वहां पर आया। Barely a few seconds on the geological clock. और अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें कि जब से पृथ्वी बनी है, तो ये बहुत कम समय है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। और इतने कम समय में भी हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने यहाँ पर रकस क्रिएट किया है, एचिंग डोमिनेंस ओवर नेचर। और हमने अपने आप को नेचर के ऊपर डोमिनेट किया है विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज। तो माय डियर चिल्ड्रन, आप समझ सकते हैं कि टिशानी दोषी यहाँ पर किस और इशारा कर रही हैं कि इतने कम समय में जब से इंसान इस धरती पर आया है, उन्होंने क्या किया है? बस अपना प्रभाव जमाने का काम किया है। यहाँ पर गांव बन गए, शहर बन गए और बड़े-बड़े और शहर बन गए, मेगा सिटीज जैसे। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. और कहते हैं कि इंसान की जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन बींग्स की जो पॉपुलेशन है, वो इतनी तेजी से इस दुनिया के अंदर बढ़ रही है कि हमें जो और जितनी प्रजातियां इस धरती पर रह रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपने लिए, स्पेस के लिए वहां पर हम बैटल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अभी भी हम अपनी जगह बना रहे हैं और दिन पर दिन पॉपुलेशन जैसे और भी बढ़ती जा रही है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और वो ये भी कहती हैं कि अनलिमिटेड जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, और बर्निंग ऑफ फ्यूल, वो भी हमारा इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ईंधन जल रहा है इस दुनिया के अंदर, जो कि पूरी दुनिया में चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक पूरी ए ब्लैंकेट मीन्स यहाँ पर पूरी चादर बिछा दी है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और जो जाहिर है कि ग्लोबल टेम्परेचर जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो caused by this burning of fossil and fuels. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. और आज के समय का सबसे हॉट डिबेट किस इश्यू पर है? जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? और इससे हमारे अंदर बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जब हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो इतने सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? कि जितने भी एंटार्क्टिका में जो बर्फ है, क्या वो अपने आप से पिघल जाएगी, पूरी तरह से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या जो गल्फ स्ट्रीम ओशन है, उसका जो करंट है, वो अपने आप से डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या ये दुनिया का अंत होगा, जैसा कि हम सब जानते भी हैं? कई बार हम सुनते हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है। मे बी, मे नॉट बी, मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी। इधर वे एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। कुछ भी हो, एंटार्क्टिका जो है इस पूरे डिबेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट इश्यू है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. So, यहाँ पर वो बताते हैं कि not just because it's the only place in the world
which has never sustained a human population. इसका रीजन ये नहीं है कि पूरी दुनिया में ये ही एक ऐसी जगह है जहां पर लोग नहीं रहते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई हैबिटेशन नहीं है, कोई रहता नहीं है, तो ये जो जितना भी इलाका है एंटार्क्टिका का, ये एक ओरिजिनल प्लेस है, प्रिस्टीन, जिसे किसी ने यूज नहीं किया है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि इसने अपनी जो बर्फ की लेयर्स हैं, आइस की जो लेयर्स हैं, उसके अंदर 500,000 year old जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन वहां पर जमा किया हुआ है, उसके अंदर लेयर्स के अंदर है, उसका रिकॉर्ड है इसके पास, जहां पर लोग रिसर्च करने जाते हैं। इफ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, अगर हम धरती के, अगर हम इस पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो टिशानी दोषी हमें बताती हैं एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। तो आपको कहां जाना चाहिए? एंटार्क्टिका में। सो नेक्स्ट वी विल सी, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ शी सेज स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द श्कोल्स्की। श्कोल्स्की क्या है? शिप का नाम है जिस पर टिशानी दोषी अपने कुछ स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका घुमाने लेकर गई थी, और वो बताती हैं कि वो वहां पर उस शिप में काम कर रही थी। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। वो बताती हैं कि उनका एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव था, जो एम था, कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वहां पर दुनिया के एक अंतिम सिरे पर, जो कि एंटार्क्टिका है, वहां पर लेकर गई, जहां पर वो उन्हें इंस्पायर करना चाहती थी और उन्हें कुछ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करना चाहती थी, जो कि उन्हें हेल्प कर सकेगा समझने में और अपने प्लेनेट को, अपनी अर्थ को जिस पर वो रह रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट करने में। क्योंकि जब वो अपनी आंखों से देखेंगे कि पृथ्वी कई हजार साल पहले कैसी थी और वहां पर क्या हुआ और क्या होने वाला है, तो वो समझ पाएंगे कि वो किस धरती पर, किस प्लेनेट पर रह रहे हैं और आने वाले समय में प्लेनेट पर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ये सब उन्हें प्रोवाइड करने के लिए जो टिशानी दोषी हैं, वो स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका लेकर गई। ये उनका एक प्रोग्राम था जिनका नाम था स्टूडेंट्स, प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो आगे देखते हैं। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. So this group was headed by a Canadian whose name is Geoff Green, and they were there for long 6 years, and who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience. तो यहाँ पर टिशानी दोषी बताती हैं कि जॉफ ग्रीन जो उनके ग्रुप को हेड कर रहे थे, घुमा रहे थे, बता रहे थे, तो वो बताती हैं कि ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हैं फ्यूचर जनरेशन, जहां पर आने वाली जो पीढ़ी है। पॉलिसी मेकर्स मीन्स जो आने वाले समय में अपनी नीतियां बनाएंगे, अपने स्टाइल बनाएंगे कि वो किस तरह का जीवन जिएंगे। तो यहाँ पर जॉफ ग्रीन जो है वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उन बच्चों को दे रहे हैं, वो जिस उम्र में हैं, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वो समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उस तरह से कर सकते हैं, दे कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट वट एवर इज बीइंग टोल्ड बाय जॉफ ग्रीन देयर। यू अंडरस्टैंड? एंटार्क्टिका जब
तिशानी जोशी अपने स्टूडेंट्स को लेकर गई हैं, तो वो बताती हैं कि वहां पर जॉफ ग्रीन जो है वो उन्हें एक नया लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहे थे, और उन्हें यकीन था कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एज है, दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर दे आर बींग टोल्ड, एंड दे कैन लर्न समथिंग न्यू देयर when they will experience themselves there. You understand that? So let's see what she says next. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. तो कहते हैं कि इस प्रोग्राम की सफलता का एक कारण ये भी था कि वहां पर साउथ पोल के इधर उधर जाना, कहीं भी जाना बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल भी था, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और इसका कोई असर भी नहीं होना था. इट्स इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. It is easy to be blaze about polar ice caps. और वो ये भी बताती हैं कि हम जहाँ पर अपनी एक सेफ जगह पर बैठे थे, तो वहां से आइस कैप्स को वहां पर मेल्ट होते हुए अपनी आंखों से देखना वो बहुत ही आसान था और अच्छा था. बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, और कहते हैं कि जब आप अपनी आंखों से वहां पर ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देखते हैं, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, और अपनी आंखों से आप वहां पर बर्फ की चट्टानों को, बर्फ के टुकड़ों को टूटते हुए देखते हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल. तब आप यकीन मानिए, तब आप महसूस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है पूरी दुनिया के अंदर, वो कितना वास्तविक है, वो कितना सच है. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. So, she says there that because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, Antarctica एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप एनवायरनमेंट में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, repercussions means an unintended consequence of an event or an action, जिसका कि आप पहले से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जो कि अचानक से होता है, तो आप उन चेंजेस को होते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं. टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. आप उनको ही ले लो, माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन. Phytoplankton, plankton consisting of small plants floating in the sea there. बहुत छोटे छोटे, बहुत माइन्यूट पौधे होते हैं जो, और उनके ऊपर भी कुछ प्लैंक्टन होते हैं, कुछ प्लैंक्टन कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल प्लांट्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दोज ग्रासेस ऑफ द सी, और जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास होती है, that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain, जो कि साउदर्न ओशन जो है वो पूरी जितना भी वहां पर जितने भी वहां पर जीव जंतु हैं उनकी फूड चेन का काम करते हैं. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle also. Here she says that scientists warn that, जो scientists हैं वो हमें वार्निंग देते हैं कि आगे आगे जो टाइम चेंज हो रहा है वहां पर ओजोन लेयर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएगी. डिप्लीशन इन द फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जिससे ओजोन लेयर के खत्म होने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो समुद्र के अंदर ये छोटे छोटे पौधे हैं, जितने भी चीजें हैं जो कि वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं के भोजन का काम करते हैं, इन पर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है. विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेरीन एनिमल्स, और समुद्र के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जानवर हैं, या फिर उस रीजन में जितने भी बर्ड्स हैं, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पूरी दुनिया के कार्बन साइकिल पर इसका असर होने वाला है. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. यहाँ पर
पैरेबल का मीनिंग क्या है? पैरेबल मीन्स a simple story used to illustrate a moral or a spiritual lesson. Then she says that there is a great metaphor, sorry, in the parable of the phytoplankton. जब यहाँ पर phytoplankton की बात आती है, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. तो टिशानी दोषी ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, जो कि एक मेटाफर है। मेटाफर आप सभी समझते हैं कि जो चीजें हम बोलते हैं वास्तव में वैसी होती नहीं है, जो हम देखते हैं वो नहीं होता है। तो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, वो यहाँ पर कहती है कि अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, तो जो बड़ी चीजें हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, विल फॉल इन टू प्लेस। तो यहाँ पर वो बताना चाहती हैं कि अगर हम स्टार्टिंग से ही अपनी अर्थ का, अपने प्लेनेट का ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, तो आने वाला जो हमारा टाइम है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, वॉक ऑन द ओशन। देखते हैं कि इस एक्सपीरियंस में टिशानी दोषी हमें क्या बताने वाली हैं। She says that my Antarctic experience was full of such epiphanies. But the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. तो वो यहाँ पर बताती हैं कि उनका जो एंटार्क्टिका का जो एक्सपीरियंस था, that was full of epiphanies. Epiphanies क्या होता है? A moment of sudden and great revelation or realization. Epiphanies जहाँ पर वो हमें बताती है कि एंटार्क्टिका एक जगह, वो जगह ही ऐसी है कि जहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है कि किस समय क्या होने वाला है। तो वहां पर अचानक ही कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ घटनाएं होती रहती हैं जो कि बहुत ही नेचुरल होती हैं। और बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल। तो बताती हैं कि जो बेस्ट उनके साथ हैपनिंग हुई वो एंटार्क्टिक सर्कल, जब वो वहां पर 65.55 डिग्रीज साउथ की ओर थी। तो द स्कॉल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड। तो जो उनका शिप था स्कॉल्स्की, वो पेनिनसुला और टैडपोल के बीच में, टैडपोल आइलैंड है, आइलैंड के बीच में एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े पर पहुंच गया था, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो कि उन्हें आगे बढ़ने में रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड। कैप्टन ने पहले डिसाइड किया कि वो जहाज को मोड़ लेंगे एंड हेड बैक नॉर्थ, और पीछे नॉर्थ की ओर लेकर जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, इससे पहले कि वो ऐसा करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक। तो उन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि वो गैंग प्लैंक पर जो है उतर जाएं एंड वॉक ऑन द ओशन, और वो समुद्र के ऊपर चलने लग जाएं। ये बहुत ही अजीब, बहुत ही अद्भुत नजारा रहा होगा उनके लिए कि समुद्र के ऊपर कोई कैसे चल सकता है। वहां पर बर्फ की इतनी मोटी परतें हैं, वहां पर बर्फ के इतने चट्टाने और पहाड़ हैं कि समुद्र के चारों, जो समुद्र है उसके बीच में भी वो बर्फ है और जिस पर कि वो चल पा रहे थे। So it was literally a very wonderful experience for Tishani Doshi and all the students. So there we were, all 52 of us. आगे वो बताती है कि हम सभी जो कि टोटल 52 मेंबर्स थे, तो वहां पर थे, kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. तो वो कहते हैं कि हम वहां पर जैसे एक ही जगह पर किट हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, और एक ऐसी बर्फ के एक बहुत बड़े टुकड़े पर वो चल रहे थे, टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो हमेशा से वहां पर था। अंडरनेथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और वो ऐसा भी महसूस कर पा रही थी कि उनके पाँव के नीचे एक कोई 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी। एंड अंडरनेथ दैट, और उस बर्फ के नीचे भी 180 meters of living breathing salt water, उन्हें महसूस हो रहा था कि 180 meters living breathing salt water किसका था? ओशन का, कि उनके पांव के नीचे समुद्र बह रहा था। In the periphery, crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes. और पेरीफेरी का मीनिंग आप पहले भी पढ़ चुके हैं लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर। सीमापुरी इज एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली।
तो पेरीफेरी का मीनिंग आपको मालूम है, आउटर एरिया। तो यहाँ पर टिशानी दोषी बताती हैं कि जो आउटर एरिया है, क्राबीटर सील्स वहां पर थी, जो कि आराम कर रही थी और धूप सेक रही थी बर्फ के टुकड़ों पर। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री। जहां पर ये बताती हैं कि जो भी जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो उसी के हैबिचुअल हो जाते हैं। और जहां पर वो बता रही है कि ठंडे इलाकों में, एंटार्क्टिका जैसे ठंडे जगह पर जो सील हैं या पेंगुइन हैं, वो किस तरह से बाहर जो बर्फ की चट्टाने हैं उन्हीं पर वो आराम करते हैं। They are habitual of that. So it was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. तो उनके लिए वो ऐसा बताती हैं कि ये मेरे लिए कुछ कम नहीं था, ये भी एक अचानक से होने वाली ही घटना थी जो पहले कभी उन्होंने नहीं देखी थी। तो इट वॉज रियली कनेक्टेड विद ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट रिवलेशन। जितने भी चीजें उनके साथ वहां पर जो भी उन्हें नया नया दिख रहा था, तो ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही नया था। आगे देखते हैं। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ शी सेज दैट, now again she is telling about the checkpoints and time zones also. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. तो यहाँ पर वो बताती हैं कि जब वो पार कर रही थी उस समुद्र को, कि उन्होंने उसको 9 टाइम जोन्स उन्होंने पार किए थे। हर कंट्री का अपना एक टाइम जोन होता है, तो ऐसे उन्होंने 9 टाइम जोन पार किए, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स। इकोस्फीयर्स आप समझते हैं कि बहुत सारी जो एनवायरमेंटल जो चीजें हैं, जैसे कि कोई डेजर्ट है या ओशन है। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस। मैं अभी तक इतना हैरान थी कि हमारी पृथ्वी पर इतनी सुंदरता, और सुंदरता के अंदर इतना बैलेंस, ये कैसे? दिस इज द पावर ऑफ नेचर, दिस इज द पावर ऑफ यूनिवर्स। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? एक नई चीज जहां पे हमें ये देखने को मिलती है, जो टिशानी दोषी बता रही हैं, वो कहती हैं कि कैसा महसूस करेंगे अगर हमें ये पता चले कि एंटार्क्टिका जैसा इतना ठंडा जो महाद्वीप है, ये कभी गर्म जगह भी होता था। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है। विल वी बी अराउंड टू सी इट, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमस एंड वूली रिनोस? क्या कभी हम उसे देख पाएंगे? क्या कभी हम उस रास्ते पर जा पाएंगे कि जब डायनासोर्स थे, मैमोस आए, फिर वूली रिनोज आए? हु इज टू से? कौन बता सकता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years. But what a difference a day makes. यहाँ पर वो बताती हैं कि 2 हफ्ते उन स्टूडेंट्स के साथ बिताने के बाद, जो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी पूरी दुनिया को बचाने का एक ऑब्जेक्टिव है, उनके पास एक उद्देश्य है, दे आर हैविंग अ पर्पस। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जो इतने हजारों साल में हो सकता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, वो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक दिन भी हमारे जीवन में एक जो है डिफरेंस लेकर आता है। जहां पर टिशानी दोषी लास्ट लाइन में हमें बताती हैं कि इंसान कुछ भी अगर करने का ठान ले तो वो कर लेता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से एक गर्म जो रीजन था, एक हॉट रीजन, एक इतने हजारों सालों के बाद वो एक इतना ठंडा रीजन बन गया, जब धरती जो है अलग अलग जो देश थे, क्योंकि यहाँ पर वो उसने हमें ये भी बताया है कि अंटार्कटिका जो है कभी इंडिया का ही एक पार्ट था और अमेरिका भी इससे जुड़ा हुआ था। यहाँ पर एक कहानी ये भी सुनने को मिलती है कि अर्जेंटीना भी इस अंटार्कटिका का एक हिस्सा बनना चाहता था, जिसने कभी यहाँ पर रहने के लिए अपने कंट्री से यहाँ पर किसी को भेजा था, ऐसा कुछ सुनने में भी आता है। तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑल्सो अबाउट दिस अंटार्कटिका, द प्लेस विच इज वेरी कोल्डेस्ट रीजन देयर। Not only coldest, but it is also driest and windiest continent in the world. और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, मैंने बताया आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि 20 लाख साल से इस अंटार्कटिका पर ना तो
कभी स्नोफॉल हुआ है, ना ही कभी बारिश हुई है। जितनी बर्फ है वहां पर, सालों साल से, हजारों सालों से इतनी ही बर्फ वहां पर जमी हुई है। तो टिशानी दोशी ने हमें एंटार्क्टिका के इस चैप्टर के अंदर journey to the end of the earth, so really it is journey to the end of the earth. It is a very interesting and knowledge giving chapter, and I think all of you understand with great care everything what I have told to you here. So we complete the chapter here, my dear students. So we will meet again in the next video with a new chapter. Till then, take care. Goodbye. Thank you.